Hello students, today we will study about the Indian Evidence Act. The first thing you have to keep in mind that is the enactment date is 15 March 1872. Then the next is enforcement date that is 1st September 1872. It is an exhaustive law that is itself given in the preamble that it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence. You don't have to go anywhere else regarding the evidence. It is only the exhaustive, it contains all rules in itself. Second is the application. It applies to the whole of India. It applies to the court, including the court martial, but it does not apply to court martial conveyed under the Army Act, Naval Discipline Act, Indian Navy Discipline Act, Air Force Act, and it also does not apply to the affidavits and the arbitrators. Regarding the affidavits, that means that the Indian Evidence Act does not regard affidavits as evidence, but there are certain exceptions regarding affidavits that where the affidavits are considered as evidence, like for example order 19 rule 1 CPC, where it is the discretion of the court to regard the affidavit as an evidence. Next is section 331 and 333 of the BNSS, and next is section 145 of the Negotiable Instrument Act. This thing you have to keep in mind. Then next is it does not apply to the arbitration or the arbitrator. That is itself also given in the section 19 of the Arbitration and Conciliation Act. Then the next important point you have to keep in mind that the court does not include the word tribunals. Okay, and this was held in Anshuman Shukla versus State of MP 2008. This thing you have to keep in mind. And the next is कभी कभी ये भी आ जाता है कि सेक्शन 2 जो है कौन से रिपीलिंग एक्ट से रिपील हुआ था. दैट इज़ द रिपीलिंग एक्ट 1938. Coming to the interpretation clause or the definition clause, court means all judges and magistrate, and as we have said earlier that this Indian Evidence Act does not apply to the arbitration, so the court does not include the arbitrators. Now coming to the fact, according to Bentham also there are two types of fact, physical fact and the psychological fact. Physical fact, fact means anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. That is जो आप अपने सेंस से परसीव कर सकते हैं, लाइक सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो वो सारे जो है फिजिकल फैक्ट्स होंगे. दैन द नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जो आपकी मेंटल कंडीशन होगी, लाइक आपका कोई रेपुटेशन है, दैट इज़ अ फिजिकल फैक्ट. आपने गुड फेथ में इंटर्नशिप किया, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट. सॉरी. सो दीज आर द इलस्ट्रेशंस गिवन बिलो दैट अगर आपने कुछ देखा है या कुछ सुना है तो वो भी एक फैक्ट होगा. सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर, ये भी एक फैक्ट है. आप एक ओपिनियन होल्ड कर रहे हो, वो भी एक फैक्ट है. आपके पास एक सर्टेन रेपुटेशन है, वो भी एक फैक्ट है. नाउ कमिंग टू द रेलेवेंट का मतलब होता है एक फैक्ट रेलेवेंट जब होगा जब आगे रेलेवेंसी हम पढ़ेंगे उन प्रोविजंस के अंडर वो फॉल करता है. दैट इज सेड टू बी द रेलेवेंट फैक्ट्स. एंड इससे एक इम्पॉर्टेंट केस इसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज़ संतोष कुमार सिंह वर्सेस CBI 2010. इसमें क्या हुआ था कि एक लड़का था संतोष कुमार सिंह एंड एक लड़की थी प्रियदर्शिनी मोटो. दोनों जो है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली में पढ़ते थे. लड़की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी एंड ही वॉज अ पास आउट स्टूडेंट, सो ही वॉज परसुएडिंग हर बट शी क्लियरली रिजेक्टेड हिम. सो एंड रिजेक्टेड हिम, सो ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज. उसने रिवेंज लिया. सो फैक्ट में रिकॉर्ड कर लेती हूँ. तो
ये फिर इसने कंप्लेन करी पुलिस को कि दैट कंप्लेन करी पुलिस को। फिर पुलिस ने प्रोटेक्शन के पर्पज़ से कांस्टेबल इनको बाहर इनके घर पे खड़ा कर दिया। एंड ही वॉज ऑल्सो फिगरिंग आउट कि शिफ्ट चेंज कब होती है कांस्टेबल की। तो जब शिफ्ट चेंज हुई उसने फिगर आउट कर लिया, वो घर में अकेली थी, वो घर के अंदर गया, उसको स्ट्रैंगल किया वायर से, फिर उसकी जो है डेथ कोज कर दी, उसका मर्डर कर दिया। तो इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लाइक दी रिलेवेंट एविडेंस क्या क्या होंगे कि हेलमेट का जो वाइज़र होता है, जो शीशे का पार्ट होता है, वो जो है पीसेस में ब्रेक हो चुका था, उस पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे एंड दैट ब्लड स्टेन्स वर सिमिलर एज दैट ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द दैट गर्ल। तो ये क्या हुआ, एक रेलेवेंट फैक्ट्स हैं कि सर्कमस्टेंसेस में जैसे प्रीवियस कंडक्ट हुआ, उसने कंप्लेन करी, पुलिस आया एंड देयर वॉज समथिंग मोटिव बिहाइंड इट कि उसने रिजेक्शन कर दिया था, तब उसने रिवेंज लेने के लिए ये सब किया। फिर सब्सिक्वेंट कंडक्ट लाइक दी हेलमेट पर, वाइज़र पर उसके ब्लड स्टेन्स के निशान थे। तो दीज आर द ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स। So you have to keep in mind that is the case Santosh Kumar Singh versus State through CBI. Next case is next definition is fact and issue. फैक्ट एंड इशू इट्सेल्फ जो एक पार्टी एजर्ट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है, दैट इज़ द फैक्ट एंड इशू. सो इट इज़ इट्सेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स जो किसी की जो कोई एविडेंस की नॉन एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंस, नेचर बताता है, लाइबिलिटी बताता है, डिसेबिलिटी बताता है, वो सब क्या होंगे, फैक्ट एंड इशू होंगे. इसके रिगार्डिंग एक केस आपको याद रखना चाहिए जो बहुत बार आ चुका है MCQs में, लाइक दी शरद बर्दीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984. दिस इज़ द फेमस केस नॉन फॉर द 5 golden principles Panchshali regarding the fact and issue. Now the next you have to keep in mind that एक केस है पुरनमल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन. इसमें क्या हुआ था कि अगर तुमने कोई भी एविडेंस लीगली ऑब्टेन्ड किया है तब भी वो कोर्ट जो है उसको अलाउ कर देगी. सो इसमें फैक्ट्स इसमें ये थे कि एक घर का सीज एंड सर्च हो रहा था, उसमें and that seize and search was not according to the principles or that violated the article 20 clause 3 that is self incrimination. तो फिर भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर एविडेंस इलीगली ऑब्टेन्ड हुए हैं तब भी कोर्ट उसको अलाउ करेगा. सो द नेक्स्ट थिंग यू हैव, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज, एंड दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है. ओके, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैटर जो है आप एक्सप्रेस कर रहे हो या डिस्क्राइब कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस पर, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स. और किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर. तो एक राइटिंग भी डॉक्यूमेंट होगी, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड या फोटोग्राफ्स भी डॉक्यूमेंट होगी, मैप और प्लान भी डॉक्यूमेंट होगा, इंस्क्रिप्शन, कैरिएचर, ये सब जो है क्या डॉक्यूमेंट है. देन द नेक्स्ट इज़ एविडेंस. एविडेंस का मतलब होता है, एविडेंस देखो 3 प्रकार के होते हैं. पहले तो फर्स्ट इज़ ओरल एविडेंस, सेकेंड इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और ये आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में. बट एक थर्ड एविडेंस और है, दैट इज़ द मटेरियल और रियल एविडेंस, जो आपको सेक्शन 60 के प्रोवाइज़ो में दिया गया है. अभी हम सेक्शन 60 के प्रोवाइज़ो को भी देखेंगे, पहले इसको देखते हैं. ओरल एविडेंस क्या होता है, जो भी कोई स्टेटमेंट आप कोर्ट आपको परमिट करती है बोलने के लिए, या आपको बोलना पड़ता है बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेसेस रिगार्डिंग टू एनी इंक्वायरी, वो होते हैं हमारे ओरल एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड होते हैं फॉर द इंस्पेक्शन, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी जैसे ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, कुछ भी, वो भी आपके क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. नाउ कमिंग टू द मटेरियल और रियल एविडेंस, दैट इज सेक्शन 60 का
proviso. Section 60 and here it is proviso. तो क्या दिया गया है? प्रोवाइजो पढ़े. प्रोवाइजो सेकेंड, दैट इज प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. Like किसी का मर्डर अगर चाकू से हुआ हो, पिस्टल से हुआ हो, गन से या कुछ भी, जैसे यूपी में कट्टा चलता है, तो वैसे अगर किसी भी वेपन के साथ या कोई भी मटेरियल थिंग हो जिससे पॉइजन ये सब होता है करते हो, तो वो भी मटेरियल आप जो है रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. एंड इस मटेरियल थिंग को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल और द रियल एविडेंस. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज़ गिवन इन सेक्शन 60 का प्रोवाइजो. नाउ द नेक्स्ट definition is proved, not proved and disproved. Proved मतलब जनरल प्रूडेंस आदमी को लगता है कि हाँ इट एग्जिस्ट एंड its existence is so probable that a prudent man, prudent मतलब आदमी को बिलीव हो जाता है कि हाँ कि ये एग्जिस्टेंस में है. लेकिन डिसप्रूव्ड क्या होता है? कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है. एंड प्रूडेंट मैन को भी लगता है कि वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं. नॉट प्रूव्ड, अगर कोई फैक्ट ना ही आप प्रूव्ड कर पाओ और ना ही आप डिसप्रूव्ड कर पाओ, तो वो नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में फॉल करेगा. Okay, now the last section of the regarding the definition is section 4, that is related to presumptions. So देखो presumptions two types की होती हैं, presumptions of law and presumption of fact. So presumption of law में आता है आपका shall presume and the conclusive proof. एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में आता है मे प्रिज्यूम. मे प्रिज्यूम जो है ये एक रेबिटेबल, मतलब आप इसको जो है कैंसिल कर सकते हो, इसको रिब्यूट कर सकते हो. दैट इज़ इट मे बी एट द रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड. ये जो है प्रूव्ड कोर्ट मान सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है कि ये एक फैक्ट प्रूव्ड हो चुका, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड. और कोर्ट जो है इसके प्रूफ के लिए कॉल कर सकता है, तब तक कोर्ट जो है में प्रिज्यूम कर सकते. शैल प्रिज्यूम ये भी जो है रेबिटेबल है. इसमें क्या करता है कि कोर्ट प्रिज्यूम अ फैक्ट, शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, और इस फैक्ट को इस फैक्ट को प्रूव्ड मानेगा जब तक कि वो डिसप्रूव्ड ना हो जाए. एंड कंक्लूसिव प्रूफ ये एक इररेबिटेबल है, क्योंकि जो है ये फिर बाद में जो है कोर्ट इसको प्रूफ ही मानता है, इसको हम डिसप्रूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस भी हैं. मे प्रिज्यूम के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं सेक्शन 86, 86, 87, 88, 89, 90, 90A, 113A, 114. शैल प्रिज्यूम के रिगार्डिंग है सेक्शन 79 to 85C, 89, 113B, 114A. कंक्लूसिव प्रूफ के रिगार्डिंग बस तीन ही प्रोविजंस हैं, सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 103. 112 तो चाइल्ड ड्यूरिंग द मैरिज, उसके लेजिटिमेसी के ऊपर है. हम पढ़ेंगे ये सारे प्रोविजंस आगे. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. थैंक यू.